حسار دلکشا مناظر کے لیے بلخ کا شہر سارے جہان میں عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور و دراز حصوں سے سیاحوں کے قافلے رواں دواں چلے آتے تھے اور اچانک شہر کی رونق میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی جشن بہارا کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک کارواں اترا۔ اس قافلے میں ایک حسین خوبرو نوجوان بھی تھا۔ گردش ایام کا ستایا ہوا چہرہ ہزاروں دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا۔ شکستہ پیرہن، بکھرے بال، اداس آنکھیں، پس مردہ صورت سے صاف آشکارا تھا کہ وہ اپنے وقت کا آشفتہ حال مسکین ہے۔ بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے، لیکن نوجوان بلخ کی خوشگوار شام و سحر سے کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں سکونت پذیر ہو گیا۔ شاہی محل کے قریب جھاڑیوں کے کج میں اس نے ایک کٹیا بنا لی اور وہیں رہنے سہنے لگا۔ دن بھر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ کے شاہی ملازمین بھی ایک فقیر سمجھ کر کبھی اس سے مزاحم نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ سورج کی آخری کرنیں کوہسار کے چوٹیوں پر جھلملا رہی تھیں۔ فقیر شہر سے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بے حد اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا، ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آواز کان میں آئی، کون اجنبی چلا رہا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی گشت کے لیے تشریف لائی ہیں؟ جو ہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا، ایک ہی جلوائے محشر طراز نے دل کا کام تمام کر دیا۔ ایک شیشہ ٹوٹا، ایک بجلی چمکی، ایک بے نوا فقیر کا خرمن ہستی آنے واحد میں جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کے جنون میں آگے بڑھی۔ تلواروں کی کاٹ فولاد کی ڈھال پر روکی جا سکتی ہے، لیکن چشم سحر طراز کا ایک ہی تیر نیمے کش پوری ہستی کو گھائل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل شکیب تو رخصت ہو ہی چکا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ غم کی تپش ساری رات کٹی۔ آہستہ آہستہ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی۔ سوز کا اضطراب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک گھائل پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک آزاد کا شکار ہو گئی۔ کبھی مکمل سکوت، کبھی باد صبا سے ہم کلامی، کبھی مناجات سحرگاہی ویرانے سے انس اور تنہائی سے پیار یک بیک زندگی کا عجیب حال ہو کر رہ گیا۔ اسی عالم کرب میں کئی مہینے بیت گئے۔ رفتے رفتے جوش جنون کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد دل کی تپش ایک محسوس حالت پر آ کر رک گئی۔ اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم تھا۔ ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق کے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا۔ آرزوئے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں نقیب نے آ کر اطلاع دی، جا پناہ ایک فقیر قلعہ معلیٰ کے دروازے پر کھڑا ہے، پائیگاہ سلطانی میں باریابی ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اور غالباً وہ کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے۔ حکم صادر ہو کہ اسے باریاب کیا جائے۔ چند ہی لمحے بعد فقیر کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ ہونے والے مقدمے کی سماعت کا سلسلہ ختم ہو چکنے کے بعد خطاب شاہی فقیر کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے جواب دیا، ایک ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں حضور، اسے مجمع عام میں نہیں پیش کر سکتا، تنہائی کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا، جا پناہ کہ حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ جا پناہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فقیر نے نہایت جرأت سے جواب دیا۔ ابھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ فرط غضب میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگی۔ پھر پوری برہمی کے انداز میں کانپتے ہوئے کہا، حرم شاہی کے ساتھ فقیر کی یہ نہایت توہین آمیز جسارت ہے،
लब कुशाई की जुरात से पहले तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाज़ा लगाना चाहिए था। इस नाकाबिले बर्दाश्त गुस्ताखी के लिए तुम अब खतरनाक सज़ा के मुस्तहिक हो। सुल्तान ने वज़ीर को खामोश करते हुए कहा, ये मुजरिम नहीं है, इस्लाम का बख्शा हुआ हक़ इस्तेमाल कर रहा है। पैगाम निकाह के लिए इस्लाम में शाह गदा, अमीर व गरीब, छोटे बड़े का कोई इम्तियाज़ नहीं है। इसकी दरख्वास्त का जवाब ताज़ियानों की धमकी से नहीं दिया जा सकता। इससे कह दिया जाए कि वो 1 महीने के बाद अपना जवाब हासिल करने के लिए आए। ये जवाब सुनकर पेशानी में उम्मीद की ताबानी लिए हुए फ़कीर दरबार शाही से वापस लौटा। दिल मुफ्तला के लिए 1 हफ्ते की मुद्दत सुबह क़यामत की तरह तवील हो गई। बड़ी मुश्किल से इंतज़ार के दिन ये कटे। इस दौरान में बादशाह ने वज़ीर को अपनी मंशा से आगाह किया। ये साफ इनकार की बजाय हुस्न तदबीर से फ़कीर को टाला जाए कि या कोई ऐसी कड़ी शर्त लगाई जाए जिसको पूरा करना करीब करीब नामुमकिन हो। जब 7वें दिन फ़कीर दरबार में हाजिर हुआ तो वज़ीर ने निहायत खंदा पेशानी से इसका खैर मकदम किया, एजाज़ के साथ बिठाया और मोहर शराफत की ज़बान में फ़कीर से मुखातब हुआ। शहज़ादी के लिए दुनिया के नामवर और अज़ीमुल मर्तबत बादशाहों की तरफ से बेशुमार पैगामात मौसूल हुए हैं। उन्हीं में तुम्हारा भी पैगाम हमने शामिल कर लिया है। अलबत्ता तुम अगर एक शर्त पूरी कर दो तो यकीन करो और मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा पैगाम कबूल कर लिया जाएगा। वज़ीर का जवाब सुनकर अंधेरे में एक किरण फूटी और फरते शौक़ से फ़कीर की आंखें चमक उठी। बेखुदी के आलम में बोल पड़ा, फरमाया, ज़ार मेरा क्या खिदमत है। मैं शर्त पूरी करने के लिए अपनी मताए ज़िंदगी तक दाव पर लगा दूंगा। वज़ीर ने कहा, शहज़ादी की अंगूठी के लिए सियाह रंग का हीरा चाहिए, इससे ज़्यादा वो कोई शर्त नहीं है। फ़कीर ने जवाब दिया, इस शर्त की तकमील अगरचे नामुमकिन हद तक मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उसे पूरा कर दूंगा। सुना है कि वो हीरा पहाड़ों की बर्फीली चोटी में पैदा होता है। खुदा मेरी मदद करेगा। रात भीग चुकी थी, सारा शहर सन्नाटे के आलम में महवे ख्वाब था। फ़कीर की कुटिया से कभी कभी सिसकियों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। पेशानी ज़मीन पर रखे हुए अश्कबार आंखों के साथ वो कह रहा था, ए दर्दमंदों के चारा साज, सुलगता हुआ दिल लेकर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूँ। हसरत की जली हुई राग को जिंदा कर दे। मेरे मजबूर बंदों की आखिरी उम्मीदगाह, मुश्किलात के अंधेरे में कदम उठा रहा हूँ। अपनी रहमतों के सहारे मंजिल मकसूद तक मुझे पहुँचा दे। अपने हबीब की शादाब तजल्लियों के सदक़े मेरे रिश्ते हुए ज़ख्मों और भीगी हुई पलकों पर रहम फरमा। सुबह होते होते इसके आंसू का तूफान थम गया। सजदे से सर उठाया तो पेशानी के उफ़क़ पर यकीन का उजाला चमक रहा था। शायद रहमत बंदा नवाज की कोई गैर महसूस तजल्ली दिल के वीराने में उतर आई थी। एक अटूट अज़म का तेवर लिए फ़कीर उठा और कांधे से पर तेशा रख कर आबादियों से बाहर निकल आया। आलम वहशत में शबानाए रोज़ चलता रहा। उसे अपनी मंजिल खुद नहीं मालूम थी। दिल की गैबी सिंगल पर कदम आगे बढ़ रहे थे। खुदा की इस वसी कायनात में उसे सिर्फ सियाह रंग के हीरे का एक चमकता हुआ नगीना मतलूब था। चलते चलते एक दिन कोहसार की वादी में शाम हो गई। हर तरफ वहशत नाक तारीकी और भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। जिधर निगाह उठती सरबा फलक पहाड़ों की दीवाना रास्ता रोके खड़ी थीं। हैरानी के आलम में एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरिंदों की खौफनाक आवाज़ें हर तरफ से गूंजने लगीं। जिंदगी खतरों में पड़ गई, जान के लाले पड़ गए। लेकिन खुदा की कारसाजी पर इसके दिल का मख्फी एतमाद पहाड़ की चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत था कि गैब के एक तमाशाई की तरह वह सारी रात जागता रहा। सुबह के वक्त जो ही आंख लगी, किसी ने शाना पकड़कर हिलाया। आंख खुल गई और एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा कह रहा था, जिस रास्ते से तुम यहाँ पहुँचे हो,
इसके दहाने पर काले पहाड़ की बर्फीली चोटी से एक बहुत बड़ी चट्टान टूट कर गिरी है। ये सोने का वक्त नहीं है, हमें तेशा उठा और काट कर अपने निकलने का रास्ता बना ले, वरना आज शाम तक ये सारी वादी बर्फ के सैलाब में डूब जाएगी। फकीर घबरा के उठा। जैसे ही वादी के दहाने पर पहुंचा, देखा कि बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान रास्ते में हाइल हो गई है। सारा दिन तेशा चलाता रहा। दिन भर की लगातार मेहनत के बावजूद गुजरने के लायक रास्ता नहीं बन सका। सूरज डूब रहा था। फकीर ने पूरी ताकत के साथ तेशा चलाया। भरपूर वार से चट्टान का बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर बिखर गया। जमी हुई चट्टान के अंदर सियाह रंग का एक ताबदार नगीना चमक रहा था। फकीर ने हैरत के साथ खोद कर निकाला। हथेली पर रखते ही एक किरण फूटी और आंखें खैरा होकर रह गईं। ये पर्दे गैब की कारसाजी पर फकीर का दिल झूम उठा। नामालूम तौर पर उसे यकीन हो गया कि यही वो सियाह रंग का हीरा है जिसे गोहरे मकसूद के लिए शर्त करार दिया गया है। एक हैरत अंगेज खुशी के साथ वो बल्ख की तरफ जिस्त लगाता हुआ चल पड़ा। कई दिन शबाना रोज सफर के बाद इस शाम को बल्ख पहुंच गया। दूसरे रोज शाही दरबार में फातिहाना शान से दाखिल हुआ। वजीर ने बरहमी अंदाज में कहा, तुम फिर आ गए। हालांकि उस दिन तुमसे आखिरी बात हमने कह दी थी कि शरीफ लोगों का ये शेवा नहीं होता। बरहम होने की जरूरत नहीं है, मैं शर्त पूरी करने आया हूँ। ये कहकर सिया रंग का चमकदार हीरा बादशाह के सामने रख दिया। पहली बार दुनिया के एक बेमिसल हीरा देखकर सारे दरबारी दंग रह गए। बादशाह भी मुजस्समे तस्वीर हैरत बना देखता रहा। वादे के मुताबिक फकीर ने अपने हक का मुतालबा किया। उसे यकीन था कि शायद मकसूद से हमकनार होने की घड़ी करीब आ गई है, लेकिन वायरिया नाकामी किस्मत कि फिर वजीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, इसमें शक नहीं है कि तुमने तलब सादिक का हक अदा किया है, लेकिन एक आखिरी शर्त और रह गई है, उसे भी पूरी कर दो तो तुम्हारी दरख्वास्त कतअन मंजूर कर ली जाएगी। यकीन करो तुम्हारे जज्बा सादिक की आखिरी आजमाइश है, बिल्कुल आखिरी है। अगर ये शर्त तुमने पूरी कर दी ये आखिरी आजमाइश है तुम्हारी, बिल्कुल आखिरी आजमाइश है। अगर इसको आप पूरा उतर गए तो आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। तवक्को के बरखिलाफ वजीर का ये जवाब सुनकर फ़कीर के तसव्वुरात की दुनिया बिखर गई। यकायक दिल की सारी उमंगों का खून हो गया। लेकिन वो इश्क ही क्या जिसमें पहम नाकामियों की चोट ना खानी पड़े। हिम्मत हारना राह उल्फत के मुसाफिर का शेवा नहीं है। फिर इसने टूटी हुई उम्मीदों का समेटा और वजीर से दरियाफ्त किया, अच्छा अब वो आखिरी शर्त क्या है, आप बोलिए वो कौन सी शर्त है आपकी। वजीर ने जवाब दिया, शहजादी के कान के आवेज़े के लिए 2 बड़े बड़े सफ़ेद मोती मतलूब हैं, जो रंग और ताबिश में सारी दुनिया के लिए बेमिसाल हों, हमें वो चाहिए। फ़कीर आज दूसरी बार घायल ज़रूर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मायूस ना था। फिर आज की रात दर्द की खर्श और मुनाजात की गिरफ्तारी में कटी। सुबह हुई तो खुदा का नाम लेकर उठा और जुनून इश्क की आखिरी मुहिम पर रवाना हो गया। लगातार कई दिन चलने के बाद एक समंदर के किनारे पर पहुंचकर दम लिया। इश्क की फलक पैमाहमत भी क्या क़यामत होती है। अपने तय आज उसने तय कर लिया था कि वह समंदर को खुश्क करके तह में चमकने वाले मोतियों का सुराग लगा लेगा। इसे यकीन के जज्बा में दोनों हाथों से समंदर का पानी फेंकना शुरू कर दिया, यानी समंदर से पानी को फेंकना शुरू कर दिया। इसी आलम जुनून खैज में कई दिन गुजर गए। पलट कर देखा तो पहाड़ों की तरह उठाती हुई मौजों का वहम आलम शबाब था, लेकिन कुर्बान जाइए अक़ीदा-ए इश्क की हैरत गिरी के कि इतनी खुली नाकामी के बावजूद जो समंदर पर फतह पाने का अज़्म ज़रा भी मुतज़लज़ल नहीं होता था। कई दिन के मुसलसल मेहनत से इसके बावजूद बाजू सिल हो चुके थे, बाजू सुन हो चुके थे, पानी उलझते
समुद्र के बजाय जिगर का खून जलते जलते खुश्क हो चला था। इतने अरसे के बाद आज पहली दफा इसने डुबडुबाई हुई आंखों से आसमान की तरफ देखा। न जाने चश्मे उम्मीद की वो कौन सी अदा थी कि अचानक गैरत करम का समंदर उबल पड़ा। नजर झपकी तो मौजों का एक रेला जगमगाते हुए मोतियों का ढेर किनारे डालकर वापस जा रहा था। फर्श मुसव्वर रस से फकीर की रोशन पेशानी सजदाए शुक्र के इस्तराब में बोझल हो गई। आज अपनी कामयाबी से ज़्यादा शान रहमत की चारागरी पर नाजा था। अब मिजाज से हकीकत की तरफ बढ़ने का उसे सुराग मिल चुका था। सजदाए शुक्र की लज्जतों से शाद काम होने के बाद मोतियों का ढेर दामन में रख लिया और फतहमंदी के सुरूर में झूमता हुआ बल्ख की तरफ चल पड़ा। आज वो कदमों के बल नहीं दौड़ रहा था, हवा के दोष पर चल रहा था। बल्ख पहुंचकर सीधा शाही महल में दाखिल हुआ और भरे दरबार में बादशाह के पाए तख्त के सामने दामन के सारे मोती बखेर दिए। इनकी जगमगाहट से देखने वालों की आंखें चुंधिया गईं। हैरत से सारे दरबारियों पर सख्ते का आलम तारी था और अब वो सारी शर्तें पूरी कर चुका था। निहाती बेताबी के साथ पस मुंतज़र फिजा का इंतजार भी कर रहा था। वजीर ने फिर उसके जज्बा शौक के साथ मजाक किया, फिर उसकी शादाब उम्मीदों का खून बहाया। तुमने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़रा गौर करो कि एक गुमनाम फ़कीर और एक मुअज़्ज़ज़ शहज़ादी के दरमियान मनसब व हैसियत का जो फ़र्क है उसे क्यों कर मिटाया जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने जुनून ख़ैज़ मुतालबे से दस्तबरदार हो जाओ। शाही ख़ानदान के एजाज़ को सदमा पहुँचाकर तुम कभी भी सुरखरू नहीं हो सकोगे। वज़ीर का ये जवाब सुनकर एक तीर नश्तर की तरह फ़कीर के सीने पर पैवस्त हो गया। दिल का वो आगीना जो मायूसियों की इज्जत से बचा बचा कर रखा था अचानक छन से टूट गया। पहाड़ों और दरियाओं का फातहा आज कामयाबी की मंजिल के करीब पहुंचकर शिकस्त खा चुका था। एक बैक शाही महल में शोर बरपा हुआ। बदहवासी के आलम में कनीज ने आकर खबर दी कि अचानक शहजादी बेहोश हो चुकी है। नब्ज ठंडी हो रही है, आंखें पथरा गई हैं, सारे महल में कोहराम मचा हुआ है। बादशाह के पहुंचते पहुंचते शहजादी की जिंदगी का चिराग गुल हो चुका था। इंतकाल कर गई थी लड़की। इस हादसे पर हर तरफ सफ़े मातम बिछ गई थी। सारा दरबार सोग में डूब गया। शिद्दत से गम से बादशाह पागल हो गया। इस खबर से सारे शहर में एक सफ़े का आलम तारी हो गया। फ़कीर के पहलू में हसरतों की एक लाश तो पहले ही मौजूद थी, अब उम्मीदों की आखिरी लाश भी से उठानी पड़ी। इस क़यामत ख़ैज़ वाक़े पर मुल्क का हर शख्स सोगवार और आबदीदा था, लेकिन हैरत थी कि फ़कीर के चेहरे से इज़्तिराब की कोई अलामत ज़ाहिर नहीं हो रही थी। जब तक शहज़ादी की तजहीज़ व तकफ़ीन का सामान होता रहा, फ़कीर सर झुकाए साकित और खामोश बैठा रहा। जब जनाजा शाही महल से रवाना हुआ तो हमरा चलने वालों में ये भी शामिल हो गया। शहर के सबसे वसी मैदान में लाखों के हुजूम में नमाज जनाजा अदा की गई और शाम होते होते शाही कब्रिस्तान में शहजादी को सपुर्द खाक कर दिया गया। अफसोस, नाज अदा, जमाल ज़ैबाई का एक गुल रहना आज कई मन मट्टी के नीचे दबा दिया गया। ये तन्हा एक शहजादी की मौत नहीं थी, साथ साथ बेशुमार उम्मीदों की भी मौत थी। रात की जुल्फ सियाह कमर से नीचे ढल चुकी थी। सारा शहर उदासियों में डूबा हुआ था। तन्हा एक फ़कीर अपनी कुटिया में जाग रहा था। यकबया सन्नाटे के भरपूर खामोशी में तेशा लिए हुए उठा और सीधा शाही महल के कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। आज इश्क की मख्फी क़ुव्वत ने उसे बेइंतहा हौसलामंद बना दिया था। आस्तीन चढ़ाते हुए वो मौत से लड़ने आया था, अपने जुनून पर यकीन के सहारे। आज उसे तकदीर का फैसला बदलवाना था। सबसे पहले घुटना टेक कर इसने शहजादी के मदफन की ख्वाब को बोसा दिया। इसके बाद ये जल्द कब्र की मिट्टी हटाई, चूँकि कब्र बिल्कुल ताज़ा थी, इसलिए जल्द ही तख्ते तक पहुँच गया। चंद तख्ते खोलने के बाद जो ही कफन का आंचल नजर आया, उसे ज़ब्त का पैमाना छलक उठा और बेख्तियार कब्र के अंदर उतर पड़ा। इश्क की बख्शी हुई हिम्मतों के सहारे लाश को बाहर निकाला, कांधे पर रखा,
तेज तेज वीरान झाड़ियों से गुजरता हुआ कुटिया में पहुंचकर दम लिया। इस कांधे से लाश को उतारकर निहाती हिफाजत और एहतराम के साथ एक गोशे में लिटा दिया। अब इश्क का फरिश्ता एक ठंडी लाश के अंदर जिंदगी की तपिश वापस लाने के लिए आसमान की तरफ माइल परवाज था। आंसुओं में तन्हाई हुई, आंसुओं में नहाई हुई दुआ जो ही अर्श से टकराई। अचानक कुटिया के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। आने वाला अपनी वज़ाए क़ता से कोई तबीब हाज़क मालूम हो रहा था और सर पर सर पर दवाओं का बोझ लादे हुए इसके हमरा एक मुलाजिम भी था। कुटिया के अंदर दाखिल होते ही तबीब ने शहजादी का कफन उठाया और नब्ज़ पर हाथ रखा और फ़कीर को आवाज़ दी, वक्त की कीमती मोहलत ज़ाया ना करो बाबा, जल्दी आओ, जिंदगी की वापसी की तवक्को घड़ी दो घड़ी की मेहमान है। शहजादी की मौत वाक़ा नहीं हुई है, सख्ते की हालत तारी है। जंबिल से दवा की शीशी निकाल कर फ़कीर को देते हुए कहा, नहायत तेज़ी के साथ शहजादी के तलवों पर इसकी मालिश कर दो। अब फ़कीर की पुरउम्मीद निगाहों का आलम काबिले दीद था। इधर इसने दवाओं की मालिश शुरू की और तबीब की निगाहें शहजादी के चेहरे पर जम गईं। चंद लम्हे बाद अचानक शहजादी के जिस्म में एक हरकत पैदा हुई और फ़कीर को एक करिश्मा हैरत देखकर खुशी से पागल हो गया। तबीब ने फिर एक सयाल दवा की शीशी उठाई और शहजादी के नाक में इसके चंद कतरे टपकाए। फौरन एक छींक आई और शहजादी ने आँख खोल दी। अचानक एक अजनबी माहौल में अपने आप को देखकर शहजादी हैरान रह गई। कफन की आंचल से मुंह ढांकते हुए कहा, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मेरे साथ क्या वाक़ा पेश आया? जल्द बताओ, दिमाग पागल हो रहा है। फ़कीर ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए जवाब दिया, किसी बात का अंदेशा ना कीजिए, आप उस वक्त एक महफूज पनाहगाह में हैं। इसके बाद तफसीलवार शुरू से आखिर तक सारा वाक़ा बयान किया जाएगा। वो बयान करता रहा। शहजादी हैरत में डूबी हुई सुनती रही। सारा माजरा सुन लेने के बाद शहजादी को इश्क सादिक की हिमायत में कुदरत की कार फरमाई का यकीन आ गया। लज्जाती हुई आवाज़ में बमुश्किल तमाम ये अल्फाज मुँह से निकल सकी, पर्दाए गैब की चारागरी जिस ख्वाब की पुश्त पनाही कर रही है और उसे शर्मिंदा ताबीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तबीब ने मदाखलत करते हुए कहा, तो फिर क्या देरी है? मेरे ख्याल में एक लम्हे के लिए भी माहौल का गैर महरम रहना मुनासिब नहीं मालूम होता। ये कहते हुए तबीब ने फ़कीर को सामने बिठाया और उन्हें साथ मुलाजिम को शाहिद बनाकर इजाब व कबूल की रस्म अदा कर दी और एक फ़रिश्ता गैब की तरह दुआ मांगता हुआ निगाहों से ओझल हो गया। आज फ़कीर की फातिहाना मसरतों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। खुशी के आंसू से आंखें भरी हुई थीं और बार बार ज़बान पर ये अल्फाज मचल रहे थे, खुदावंद तेरी शान बंदा नवाजी के कुर्बान, यही मैं घायल भी हुआ था और यही शिफायाब भी हो गया। सच फरमाया है तेरे रसूल मोहतरम ने कि तेरे करम पर भरोसा करने वाले कभी नामुराद नहीं होते। फ़कीर की ज़िंदगी का आज नया दौर शुरू हुआ था। रफ्ते रफ्ते खुशहाली के दिन सुवरने लगे, मुस्तकबिल पर चेहरा निखरने लगा। शरीक गम साथी की तरह शहजादी ने फ़कीर के साथ अपनी रफ़ाकत का हक अदा कर दिया। न्याय खंदा पेशानी के साथ शाही ज़िंदगी गुरबत व अफलास के सांचे में ढल गई। किसी हाल में भी पेशानी पर बल नहीं आया। कई साल गुजर गए लेकिन शहजादी ने अपने दोबारा जी उठने के राज से किसी को बाखबर नहीं होने दिया। फ़कीर की कुटिया से शाही महल का फासला कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। उसे यकीन था कि वह सिर्फ फ़कीर के लिए ज़िंदा की गई है, इसलिए वह अपनी ज़िंदगी का दायरा वसी नहीं करना चाहती थी। ख़ानदान की लाडली बेटी के इंतकाल के बाद शाही महल पर हमेशा के लिए सोगतारी हो गया था और दरबार की रौनक सर्द पड़ गई। बेटी के गम में बादशाह की ज़िंदगी मुरझाए हुए फूल की तरह उदास हो गई थी। अब वो चहल पहल ना थी और ना शाहाना कर्रो फर का एहतमाम था। तबीयत सादगी की तरफ माइल हो गई। दीनी मशागिल से दिलचस्पियाँ बढ़ने लगीं, जैसे कि लड़की के नाम से सदका जारिया करना, मस्जिदों की तामीर, मदरसों का क़याम, वाज़ो ज़िक्र की मजलिस का इनेकाद बादशाह का महबूब मशगला बन गया। ये बादशाह
का एक मशगला बन गया था, यानी अपनी लड़की के नाम से सदका जारिया मस्जिदें बनवानी, मदरसे बनवानी। तो जैसे सारे मदरसे बनवाए और मदरसे बनवाने के बाद जब उसमें पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ तो अब इसका ये मामूल था बादशाह का कि हफ्ते के एक दिन तालीमी और फलाही इदारों का मुआयना करने के लिए मखसूस था, यानी एक दिन मुकर्रर था हफ्ते में। आज एक मकतब की सालाना तकरीब थी। तमाम बच्चे साफ सुथरे लिबास में बादशाह के खैर मकदम के लिए खड़े थे। जो ही बादशाह की सवारी आई तमाम बच्चों ने झुककर सलाम किया। नागहां बादशाह की नज़र एक 4 साल के बच्चे पर पड़ी, यानी इसके लड़का पैदा हो गया जो दोबारा जिंदा हुई कब्र में। 4 साल के बच्चे पर जब निगाह पड़ी, उन्हीं बच्चों में एक बच्चा है, बड़ा हसीन और जमील बच्चा है। जब बादशाह की उस 4 साल बच्चे पर जब निगाह पड़ी, दिल अज खुद इसकी तरफ खींचने लगा। बार बार उसे देखने की ख्वाहिश मचलने लगी। बिला आँख उसे पास बुला के बिठा लिया और मुअल्लिम से दरियाफ्त किया, मौलवी साहब से दरियाफ्त किया कि इतना रोशन दिलकश चेहरा हमारी रियासत में पहली बार नज़र से गुजरा है। ये किसी अर्जुमंद बाग के चमन का फूल है? किस बाग के चमन का फूल है? आलिम साहब ने जवाब दिया, मदरसे में दाखिल हुए चंद ही दिन हुए हैं, उसे लेकर कभी कभी इसका बाप भी आता है। वैसे ज़ाहिरी वज़ा क़ता से गरीब और मिस्कीन आदमी नज़र पड़ता है। बादशाह हैरान था कि ऐसा रोशन ताबिंदा बच्चा क्यों कर पैदा हो गया। चलते वक्त आलिम साहब को हिदायत कर गया कि इसके बाप को बच्चे के हमरा दरबार में हाजिर किया जाए। शाम को आलिम साहब ने बादशाह को हुक्म फ़कीर का पहुंचाते हुए ताकीद की कि वो अपने बच्चे को लेकर दरबार में फ़ौरन हाजिर हो जाए। फ़कीर ने जब ये शहज़ादी से इसका तज़किरा किया तो यकायक उसके चेहरे पर रंग बदल गया। रह रहकर उसे महसूस होने लगा शायद मशीयत इलाही एक सरबस्ता राज को बेनकाब कर देना चाहती है। हाकिम का हुक्म था, मजबूर दूसरे दिन बच्चे को बना सवार कर बाप के साथ कर दिया। पैदाइशी हुस्न की रौनक की क्या कम थी, अब ज़ाहिरी आराइश से उसे निगार खाना कुदरत का शाहूकार बना दिया। बच्चे को हमरा लेकर जब फ़कीर अपने भेष बदल कर दरबार में हाजिर हुआ तो वक्त सैकड़ों निगाहें बच्चे की तरफ मरकूज़ हो गई। चेहरा जमाल की ताबंदगी और जिल्द खुदादाद की दिलकशी देखकर शख्स दम बखुद रह गया। बादशाह के जज्बाए शौक़ का अजीब हाल था। तख्त शाही से उठकर बच्चे को गोद में बिठा लिया। नामालूम तौर पर दिल की कशिश तेज़ हो गई, रगों का खून जोश मारने लगा। दरबार को मुंतज़िर छोड़कर आज पहली बार बादशाह हरम सराय में दाखिल हुआ। मलका दौड़ी हुई खिदमत में हाजिर हुई। हमरा एक मानूस शक्ल सूरत का बच्चा देखकर मलका हैरत में पड़ गई, बार बार उसे देख रही थी। बेसाख्ता बोल उठी, ज़रा गौर से तो देखो, इसकी पेशानी, इसके होठ हो बहू मरहूम शहजादी की तरह हैं। जैसे भी मुमकिन हो ये बच्चा मुझे दिला दिया जाए। बादशाह ने जवाब दिया, वैसे भी मैंने मालूम किया है ये एक फ़कीर का बच्चा है, लेकिन कोई अपने बच्चे को बखुशी किसी के हवाले नहीं कर सकता। अगर किसी की गोद का खिलौना जबरन छीन लेना इंसानी मरवत के ख़िलाफ़ है। मलका ने दरमियान में मदाखलत करते हुए कहा, मैं ममता की मारी खुद ही गवारा नहीं करती कि किसी के दिल का टुकड़ा ज़बरदस्ती उसे अलहदा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने में क्या हर्ज है कि इसके वालिदैन की भी रहाइश का इंतज़ाम महल ही में कर दिया जाए और एक फ़कीर घराने की मेराज इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। बादशाह ने मलका को सराहते हुए कहा, तुम्हारी राय करीन क़यास है। महल सराय से वापस आने के बाद बादशाह ने फ़कीर को मुखातब करते हुए कहा, मलका तुम्हारे बच्चे को अपने पास रखना चाहती है, क्या तुम इसकी इजाज़त दोगे? फ़कीर ने जवाब दिया, मलका की खुशनुदी की ख्याल से मैं किसी तरह गवारा कर भी लूँ तो इसकी माँ कभी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो गरीब बेमौत मर जाएगी। जा पनाह
بادشاہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں بچے کو ماں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر محل کے ایک گوشے میں تم لوگوں کی رہنے کا انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بچہ بھی اپنی ماں سے علیحدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا دل بہلاتی رہے گی۔ فقیر نے کہا، میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ صورت میری اہلیہ بھی پسند کر سکے گی یا نہیں، کیونکہ یہ مسکینوں کے لیے شاہی محل کبھی راس نہیں آتے۔ بادشاہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، اس کی تم فکر ذرہ برابر بھی مت کرو، تمہاری اہلیہ کو جیسے بھی ہوگا ہم اس کو منا لیں گے۔ محل کے عقبہ دروازے کے اندر شاہی بیگمات کی مخصوص رکھی جا رہی تھی، یعنی ڈولی رکھی جا رہی تھی۔ شاید آج ملکہ کہیں جانے والی تھی۔ خاصین کی جھرمٹ میں آ کر ملکہ پالکی میں بیٹھ گئی۔ شاہانہ کروفر کے ساتھ پالکی آگے بڑھی۔ راستے کے پیشوائی کرنے والا خواجہ سراؤں کا ایک دستہ آگے چل رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ملکہ کسی فقیر کی کٹی پر جا رہی ہیں۔ اس خبر کو جس نے بھی سنا اسے سخت اچنبھا ہوا کہ یعنی بادشاہ شہزادی ایک فقیر کی جھوپڑی پر جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا اچنبھے کی تو کوئی بات نہیں ہے، شہزادی کے انتقال کے بعد جب سے لڑکی کا انتقال ہوا ہے، بادشاہ سلامت فقیروں اور مسکینوں کا رابطہ شاہی خاندان سے بہت قریب ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خدا رسیدہ درویش کی زیارت کو ملکہ جا رہی ہیں۔ آخر اللہ والوں کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جائیں؟ وہ تو خود ہی عقلی میں ولایت کے تاجدار ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کی سوبار غرض ہو تو ان کے قدموں کی خاک سے برکت حاصل کریں۔ پالکی شاہی باغ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ فقیر کی کٹیا تک جانے والا راستہ نہایت پرپیچ تھا۔ ایک خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی۔ فقیر اپنی کٹیا سے گھبرایا ہوا نکلا۔ آج پہلی مرتبہ دروازے پر ایک پالکی دیکھ کر اسے سخت حیرت تھی۔ خواجہ سرا نے فقیر کو مطالعہ کیا کہ پالکی میں ملکہ تشریف لا رہی ہیں اور تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں، اور یہ اطلاع کر دو۔ یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک سے ہو گیا۔ بدحواشی کے عالم میں شہزادی کو اطلاع دی۔ سال کا مخفی راز آج بے نقاب ہوا، اب چھپنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ عقل معاف ہو گئی، خون سوکھ گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسی عالم میں کہ شہزادی دم بخود کھڑی تھی، اچانک کٹیا کے اندر ملکہ داخل ہوئی اور پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ جھپک گئی۔ پہلی جیسے نظر پڑی فوراً آنکھ جھپک گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو سکتے کا عالم طاری ہوا، بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد منہ سے پھر ایک چینخ نکلی، کیا شہزادی؟ فوراً دوسری چیخ بلند ہوئی، اماں! ہاں ماں! نظر کا مشاہدہ دل مان گیا تھا، لیکن دماغ انکار کر رہا تھا، کیونکہ دفنائی ہوئی بیٹی کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے؟ مرنے کے بعد آج تک کوئی واپس لوٹا ہے، ایک ناممکن بات کبھی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، بیداری کا خواب ہے، یقیناً آنکھ کا کھلا ہوا فریب ہے۔ پھر ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کیا۔ پھر چیخ بلند ہوئی، کیا واقعی تم میری شہزادی ہو؟ میری لخت جگر ہو؟ میری آنکھوں کی روشنی ہو؟ ہائے، آج میری نگاہوں کو کیا ہو گیا؟ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ شہزادی نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، یقین کیجئے میں سچ مچ آپ کی شہزادی ہوں ماں۔ میں آپ ہی کی بدنصیب بیٹی ہوں، جسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا۔ کرشمہ قدرت سے میں دوبارہ جی اٹھی ہوں، اور حیرت نہ کیجئے، عشق کی غیبی توانائی مجھے عالم برزخ سے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ مرتے وقت میرا یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ کہیں پاس سے ایک شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی تھی۔ سن لیجئے کہ مجھے مدفن کی خاک سے اٹھا کر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے تفصیل کے ساتھ تمام سرگزشت سنائی۔ دل تو پہلے ہی مومن تھا، اب واقعے کی صداقت کے آگے دماغ نے بھی سپر ڈال دی۔ اب بات کٹیا سے باہر نکل چکی تھی، بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی کہ
کہ 4 साल की मरी हुई शहजादी अचानक जी उठी है। बादशाह ने सुना तो फर्ते खुशी में पागल हो गया। आगे पीछे सारा शहर फ़कीर की कुटिया की तरफ चल पड़ा था। अलकिस्सा मुख्तसर कि शाहनाए तज़ुक़ एहतशाम के साथ फ़कीर और शहजादी का जुलूस निकाला गया। जज्बा शौक़ में सारा इलाका हिल गया। कसरत अज़दहाम से रास्तों में तिल रखने की जगह नहीं थी। किला-ए मुअल्ला के दरवाजे पर खैर मक़दम के लिए अराकीन मुल्क हाथ बांधे खड़े थे। समंदर की बेताब मौजों की तरह बादशाहों के जज्बात में तलातिम बरपा था। जो ही किला-ए मुअल्ला के सामने फ़कीर की सवारी पहुंची, तहसीन उमर हबा की आवाज़ से फ़िज़ा गूंज उठी। बादशाह ने आगे बढ़कर फ़कीर को गले लगा लिया और सारी दुनिया खुशी के आलम में महव थी। लेकिन फ़कीर एक रिक्कत अंगेज़ तसव्वुर में डूबा हुआ था। उसे बार बार याद आ रहा था कि फ़कीर का खैर मक़दम करने के लिए जिस उस वक्त जहाँ बादशाह खड़ा है, इसी जगह एक दिन फ़कीर खड़ा था और निहायत लजाजत के साथ बारियाबी की इजाज़त मांग रहा था। निहायत एज़ाज़ व तौक़ीर के साथ फ़कीर को शाही महल में उतारा गया। अब वो फ़कीर नहीं था, सल्तनत की आंखों का तारा था और बादशाहों का वली अहद था, बल्ख का फरमारवा था। लेकिन नहीं, वो अब भी फ़कीर था, ऐसा फ़कीर जिसके आगे बादशाहों के जलाल सरंगू था। तख्त ताज का सबसे बड़ा एजाज़ के कदम की ठोकर पर था और ये वही फ़कीर था जो दुनिया में जिनका नाम रोशन है, हज़रत इब्राहीम अदहम बल्ख रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये वही मशहूर हैं जो तारीख़ विलाद में जिनका नाम, जिस फ़कीर का नाम ये आया है कि हज़रत इब्राहीम अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर हुए। ये वही